Welcome on the webinar. Aditi, please. Good evening, everyone. Today I'll try to make it very simple. I'll use both English, Hindi, जो अपने चालू भाषा में जैसे बात करते हैं, ताकि मकसद है कि अपने को समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या हो रहा है. I'll be sharing a small presentation, or as we move in the presentation, topic by topic, I'll be explaining things. I'll request everyone to have a notepad and a pen with you, because as I go along with my presentation, especially for the auditors, I will be giving certain pointers जो आपको points note कर लेने चाहिए. These will help you in identifying what to audit and what to look at. So with that, I'll start my screen. Sure. So as I introduced, this is Aditya Chokhani from Vaurus Advisory Services, and we are into जैसे व्यास जी ने बोला था, I'm not a lawyer, but I'm a consultant to labor compliances. और करीब 4,500-5,000 employees का compliances is what we are managing. So moving ahead, we'll start with the basic topics, and this is on your screen. You can see the list of topics I'll be covering today. What is labor compliances? Labor compliances में सबसे important है salary structures. Salary structure is where you come with the numbers and the figures. Being bookkeepers and auditors, numbers are most important to you. And then we come to the acts like ESIC, PF, P-tax, minimum wages, gratuity, child labor, labor cess in building and other construction workers, labor welfare fund, payment of wages act, and bonus. So we'll start with the introduction to labor compliances. The first topic is एक बहुत confusion है सब कोई को. फैक्ट्रीज में जो लेबर हैं सिर्फ उन्हीं पे लेबर लॉ अप्लाई होता है, पीएफ अप्लाई होता है, लेबर्स अलग है, स्टाफ अलग है. So that is something जो सब कोई को काफी कंफ्यूज करता है. So when you are auditing any of the books, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि anyone into an employer-employee relationship comes under the labor law. Now, even the directors of a company who is drawing salary or not drawing salary, as chartered accountants, you know much better, directors are not owners by statute. So even they are calculated as employees जब numbers गिनते हैं या compliance गिनते हैं तब. So this is a very important point. यहाँ सब लोग गलती करते हैं. What is labor and what is staff? Everyone employed is covered under labor law. Principal employer and contractual employee. Here an establishment जहाँ direct employees हैं उनका compliances आपको directly करना है, but जो आपके contract में काम कर रहे हैं उनका compliances आपको ensure करना है. So this is the most important part. Ensure करना है. मान लीजिए आपके contractors अगर registered भी हैं तो उन्होंने चालान जमा किया है कि नहीं, पीएफ जमा किया है कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना है. इफ यू आर बुकिंग दैट कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंस इन योर बुक्स. नाउ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी. इफ योर कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लाई with any of the act, all the liability transfers to the principal employer. So when you are auditing the books and if there are expenses under compliances, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में अगर किसी ने खर्चा बुक किया है या आउटसोर्स किया है, सो इफ दोज एक्सपेंसेस आर देयर, इफ इट इज बुक्ड, मेक श्योर उनके कंप्लायंसेस पूरे हुए हैं. अगर वो नहीं हुआ है, so you have to book it as a compliance paid as the principal employer by the company that you are auditing. Now coming to the intent and spirit of this, so एक और confusion लोगों को रहता है कि labor compliances, be it PF, ESI, it is a tax. Make sure it is not a tax, it is a welfare fund जिसका custodian employer को बनाया गया है. So you deduct and deposit. Now penalties and penal action are invited if you are deducting and collecting and not paying. Something similar to what TDS आपके केस में होता है कि आपने किसी से काट लिया और आपने जमा नहीं किया, या GST आपने किसी से काट लिया और जमा नहीं किया है, so that becomes a criminal offense. Now salary structures and components पे अपने आते हैं. Gross salary is basically जब हम basic या कोई भी component, all the allowances and everything combined is the gross salary.
अब इन द ग्रॉस सैलरी दो चीज अपने को ध्यान रखना हमेशा, एंड दैट इज just a second, I'm unable to see the chat. Yeah. So in gross salary, basically there is one rate of gross and another part is the earned gross. In the rate of gross, what we actually see is आपने किसी को रखा बात करके कि मैंने 10,000 रुपए महीने या 20,000 रुपए महीने पे रख रहे हैं, so that is the rate of gross. But earned gross is actually जो बंदे ने जितना अटेंडेंस अटेंड किया है उसके हिसाब से जो किया है. So applicability of compliances comes on the rate of gross. It does not come on the earned gross. Contribution जो जमा करते हैं वो earned पे आता है. But कौन compliance में रहेगा और कौन बाहर रहेगा ये rate of gross में रहेगा. You can take a note on this because आगे ये चीज हम लोगों को PF, ESI वगैरह में काफी जगह समझने में काम आएगी. Now coming to next, CTC जो हम लोग बुक करते हैं, so gross के ऊपर जब employer अपना contribution जमा करता है, एक सेक्शन एम्प्लॉय का होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है. एम्प्लॉय वाला हम डिडक्ट करते हैं, एम्प्लॉयर वाला जमा करते हैं. वो जमा करके जो आता है दैट इज सीटीसी. सो ग्रॉस और सीटीसी का फर्क हम लोगों को समझना है. एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा ग्रॉस बुक किया जाता है, सीटीसी नहीं बुक किया जाता है एज एक्सपेंसेस. नाउ बेसिक फॉर स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ पीएफ, पिछले दिनों काफी इसके बारे में चर्चा रहा है. सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था. So as per that order, after all interpretations, purely for the purpose of PF, सिर्फ HRA is not a part of basic salary. Any other allowance, वो टेलीफोन अलाउंस है, कन्वेंस है, स्पेशल अलाउंस है, any other allowance is a part of your basic salary जिस पे PF जाएगा, PF wages. But the variables like overtime, bonus, incentives, ये आपके PF में include नहीं होता है. For gratuity, only basic as defined in your salary head is calculated, not other allowances are taken as per the definition of PF. तो ये आपको basic gratuity act में अलग उसका interpretation है, PF act में उसका अलग interpretation है. Allowances basically is all the allowances. जब हम ESI पे आते हैं तो all allowances are a part of gross, except for one allowance that is washing allowance. उसके अलावा हर अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑन ईएसआई. तो बहुत लोग इसका जगलरी करते हैं कि ये अलाउंस है उस पे देंगे उस पे नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है. एंड वेरिएबल पे भी ईएसआई लगता है, बट उसके एक फ्रीक्वेंसी है दैट वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी डिस्कस ईएसआईसी. नाउ लीव एनकैशमेंट, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अर्निंग. एक एम्प्लॉय का जब अर्निंग अपने देखते हैं तो इफ यू आर एनकैशिंग लीव, बट उस पर कोई भी पीएफ, ईएसआई या कोई भी अदर कंप्लायंसेस उस पर ऐड नहीं होती है. अगेन एनुअल बोनस के ऊपर ऐड नहीं होता है. एंड बोनस एक्ट में भी जब हम लोग एज पर बोनस एक्ट जब बुक करते हैं, सो एक्ट में काफी कुछ है. तो मान लीजिए जनरल प्रैक्टिस इन द मार्केट इज एक महीने का सैलरी दे दिए, बट किसी की सैलरी अगर 20,000 है और बोनस 8.33 डिडक्ट हुआ है, तो उसमें 7,000 should be booked as bonus and 13,000 should be booked as ex gratia. This is again when you are auditing your books of your clients, profit and loss में इसको अलग अलग मेंशन किया जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप पूरा 20,000 रुपये एज बोनस बुक करते हैं, so that is not as per the bonus act. In question answer I can further explain to you if someone has elaborate questions on this. But leave encashment, bonus, incentive, salary, wages as per the attendance of the employee, ये सारी कुछ calculate होता है as the earning of the employee or deduction of TDS of the employee. Incentive again should be variable in nature. बहुत लोग just to evade it, fixed एक nature का अगर आपका incentive है, एक ही amount हर महीने अगर कोई pay कर रहा है, so that is not calculated as variable pay. उसको आप अलाउ ना कीजिए फॉर ESIC. Part of annual earning and so any incentive again will be calculated in the financial year's earning and it will be a part of TDS deduction. Now I will be discussing deduction and contribution here. These are two very important things, क्योंकि आपके इनकम टैक्स में अलाउ करना डिसअलाउ करना डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन पे अलग अलग होता है. ग्रॉस सैलरी हमने इसके पहले डिस्कस किया. ग्रॉस सैलरी से एम्प्लॉय का हम जो कुछ भी काटते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ डिडक्शन, दैट इज अ पी टैक्स.
बी TDS, एम्प्लॉय का जो पोर्शन ऑफ ESIC, एम्प्लॉय पोर्शन ऑफ PF, LWF, दिस आर ऑल डिडक्शंस. ये अगर हमने टाइम पे जमा नहीं किया, सो सर्टेन पोर्शंस ऑफ इट आर डिसअलाउड इन द इनकम टैक्स एक्सपेंसेस. बट someone is asking some questions. Yes, the presentation can be shared with you later on. Now, coming to deductions and contributions. So, salary sheet में when we are presenting advance as recovered, that is not deduction. मान लीजिए किसी ने as per attendance, incentive सारे कुछ मिला के someone has earned 10,000 rupees और उसमें से आपने अगर 2,000 रुपया पिछला एडवांस रिकवर किया है, सो कंप्लायंस 10,000 पे होगा, 8,000 पे नहीं होगा. सो मंथ ऑन मंथ जब आप ऑडिट करते हैं, दैट इज वन पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड. बहुत लोग ये गलती करते हैं, एडवांस को भी अर्नड सैलरी से कम कर देते हैं. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू बी केयरफुल. कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर शेयर इज अगेन PF एंड ESI. नाउ जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं, जब मैंने बोला ग्रॉस सैलरी, जब मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं तो हम ग्रॉस सैलरी बुक करते हैं, जिसमें से ये जो एडवांस ये डिडक्शंस हैं उसको अलग से बुक नहीं करते हैं. लेकिन एम्प्लॉयर शेयर ऑफ PF एंड ESI हम लोग अलग से बुक करते हैं. ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग बुक करना चाहिए. सैलरी इज द ग्रॉस सैलरी एज एक्सपेंसेस एंड contribution is something which the employer is contributing from its pocket separately. Coming to the audit points, income tax disallows only the deduction part. Now, अपने 3CD वगैरह में जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो देयर इज अ कॉलम जहां अपने को देना पड़ता है व्हाट इज द PF पार्ट एंड द ESI पार्ट, व्हाट वाज द ड्यू डेट, व्हाट वाज द डेट ऑफ डिपॉजिट. उसमें वी डोंट हैव टू गिव द इंटायर अमाउंट. मान लीजिए हम चालान 20,000 रुपए का भरे हैं, बट 20,000 में 10,000 रुपए हमारा एम्प्लॉय शेयर था, तो सिर्फ एम्प्लॉय शेयर वहां लिस्ट करना है. एंड एम्प्लॉयर शेयर जो है दैट इज नॉट टू बी लिस्टेड फॉर द डिसअलाउइंग. सो आप जब वहां पे करते हैं तो देयर यू हैव टू सी कि वहां पे सिर्फ अपने एम्प्लॉय शेयर को ही डिसअलाउ किया है. इंटरेस्ट एंड डैमेजेस वो पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो दैट इज अगेन बुक्ड एज ऑन अ टोटल अमाउंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिडक्शन मिलाकर. एंड ऑडिट नोट में आप डिडक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन को अलग से क्वालिफाई कीजिए. That will help you if there is any kind of dispute or if there is any kind of correction that you file, या आप कभी कोई स्क्रूटनी करवाते हैं तो उसमें ये अगर अलग अलग आपका क्वालिफाई किया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे डिसअलाउंस नहीं होता है, सिर्फ डिडक्शन अमाउंट पे डिसअलाउ होता है. नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESIC रूल्स हम करते हैं. Any establishment with the 10th employee. Now, when we talk about the employee, the definition of employee is very important. जब हम पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म में करते हैं तो ओनर इज ओनर. बट जब प्राइवेट लिमिटेड फर्म में, लिमिटेड फर्म्स में, या फिर हम अगर LLP में भी अगर पार्टनर सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, सो दे आर कैलकुलेटेड इन द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज. ये मिलाकर अगर 10 हो गए हैं, सो ESIC का रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस मैंडेटरी हो जाता है. Exclusion from ESIC comes in two scenarios. मान लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट में 20 लोग हैं या 15 लोग हैं, 15 के 15 ESIC में हैं. अब उसमें से 5 लोगों का अगर सैलरी 21,000 के ऊपर चला जाता है तो वो 5 लोग ESIC से बाहर होता है, एस्टेब्लिशमेंट ESIC से बाहर नहीं होता है. या फिर अगर कोई एम्प्लॉय या कोई कंपनी ऐसे एरिया में है विच इज नॉट नोटिफाइड. देयर आर सर्टेन एरियाज इन रिमोट एरियाज, माइनिंग एरियाज, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं जहां पे ESIC एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इट इज आउट ऑफ द ए नोटिफाइड जोन. सो ओनली ऑन दोज 2 केसेस अगर एस्टेब्लिशमेंट में 10 लोग हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को एक्सक्लूजन मिलता है. दिस इज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन. अभी करंट जो चल रहा है दैट इज 0.75 आप एम्प्लॉय से काटते हो, 3.25 आप एम्प्लॉयर का ऐड करते हो. सो डिसअलाउ अगर जब होता है फॉर डिलेड डिपॉजिट, सो ये 0.75 डिसअलाउ होगा, 3.25 डिसअलाउ नहीं होगा. कंट्रीब्यूशन पीरियड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 90% लोग इस पे गलती करते हैं.
ESIC में मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 थी, मई या जून में उसकी सैलरी बढ़ाकर 22,000 कर दी। सो यहाँ जो हमने डिस्कस किया 21,000 वाला, सो लोग जून में या मई में ही उसका कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय अपने सीलिंग से बाहर जाता है तो ये कंट्रीब्यूशन पीरियड उसको पूरा करना है। मान लीजिए अगर मई में किसी की सैलरी बढ़कर वो 21,000 के ऊपर चली गए हैं तो सितंबर तक उसको डिपॉजिट करना है और पूरे बढ़े हुए अमाउंट पे करना है, और उसके बाद वो अक्टूबर से उसका कंट्रीब्यूशन बंद होगा। बट सितंबर तक उसको कंट्रीब्यूशन करना है अगर वो 21,000 के ऊपर चला भी गया विद इन द कंट्रीब्यूशन पीरियड। Now due date, as all of you know, most probably is the 15th of every subsequent month. Wage month से अभी मई चल रहा है तो 15 जून is the standard due date. So always pay on the gross. ESIC is always paid on the gross. इसमें कोई तरह का ब्रेकअप काम नहीं करता। जो भी आपका अर्नड ग्रॉस है उस पे आपका ESIC कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट एंड डैमेजेस इज ऑलवेज ऑन अ पर डे बेसिस। जैसे अपने इनकम टैक्स वगैरह में काफी सारे लॉज में अगर आप 2 दिन भी डिले हो गया तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इट इज कैलकुलेटेड ऑन द डे एंड विद द नंबर ऑफ डेज देयर इज अ स्लैब ऑफ डैमेजेस। सो इंटरेस्ट प्लस डैमेजेस पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। नाउ हियर एज एन ऑडिटर, मान लीजिए किसी ने डिले जमा किया है बट आपके यहाँ अभी तक डिपार्टमेंट से डिमांड नहीं आया है। सो अगर आप अक्रूवल बेसिस पे काम कर रहे हो सो वो कैलकुलेशन करवा के वो लायबिलिटी आपको बुक करना चाहिए। नाउ ESIC विल नॉट बी पेड इफ इंसेंटिव इज पेड मोर देन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 डेज। सो अगर कुछ हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं इंसेंटिव तो उस पर ESIC नहीं होता है। बट अगर कोई वेरिएबल पे है, बीट ओवर टाइम, बीट इंसेंटिव, अगर मंथली पे या एनी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उस पर भी ESIC होता है। तो मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है और इंसेंटिव 10,000 है तो 30,000 के ऊपर ESIC पेमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ 21,000 पे ही पेमेंट होगा। एनुअल बोनस के ऊपर ESIC इज नॉट एप्लीकेबल, बट ESIC इज एप्लीकेबल ऑन ओवर टाइम। अगर कोई ओवर टाइम बुक कर रहा है तो ओवर टाइम के ऊपर ESIC पे करना है। The general KYCs for ESICs, आधार, पैन, ई पहचान कार्ड सबको इशू होना चाहिए। बैंक अकाउंट एम्प्लॉइज के रेगुलर रहने चाहिए। फोन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी सेल्फ सर्विस में एवरीथिंग गोज ऑन OTP। अगेन आई ब्रश थ्रू दिस बेनिफिट्स ऑफ ESIC। एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज एम्प्लॉय का एंड उनके डिपेंडेंट्स का, देयर इज नो अपर सीलिंग। कवरेज फॉर लॉस ऑफ पे इज देयर। No restriction on pre-existing diseases, no limit on dependent's age. And now coming to the audit points, proper calculation of interests and damages should be there, on contribution should be there, deposit on time, if not on time आप disallow करते हो, delay या book करते हो if you are on the accrual basis, arrear payment and supplementary payment, this is something that you should understand quite seriously. There is a difference between arrear and supplementary. मान लीजिए किसी ने डिले इंक्रीमेंट घोषित किया इन जून जुलाई तो आप अरियर पेमेंट करते हो। वो अरियर उसी मंथ बुक कीजिए और उसका जो डिफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो आप पे कर रहे हैं, वो डिसअलाउ नहीं होता है। बट मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज हैं, उसके किसी एक एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट नहीं था और उसके 3 महीने डिपॉजिट नहीं हुए, फिर चौथे महीने जाके 3 महीने का डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज सप्लीमेंट्री। उस एक एम्प्लॉय का वो सप्लीमेंट्री पे जो डिले डिपॉजिट हुआ वो डिसअलाउ होगा। सो आई एम रिपीटिंग, अरियर पेमेंट के ऊपर जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस जाते हैं स्टैट्यूटरीज वो डिसअलाउ नहीं होता है, बट सप्लीमेंट्री के ऊपर जो जाता है वो डिसअलाउ होता है। सो और ऑलवेज ओनली डिसअलाउ द एम्प्लॉय शेयर, नॉट द एम्प्लॉयर शेयर। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ चालान, ये आपको मैं अगले स्लाइड में, दिस इज कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में आपको दिख जाता है कि कितने दिनों का जमा हुआ है, किसका किसका जमा हुआ है। सो दिस इज वन रेफरल ऑडिट डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सी। पेमेंट कब हुआ है इसका प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन यू कैन सी हियर, दिस इज द सक्सेस
एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि कब पेमेंट हुआ, कितने बजे, कौन से डेट पे पेमेंट हुआ है. सो दीज आर द 2 डॉक्यूमेंट्स फॉर यू टू वेरीफाई कि पेमेंट कब हुआ है, डिसअलाउ करना है, नहीं करना है. वी आर कमिंग टू पीएफ. जैसे ईएसआईसी पे 20 पे 10 पे एप्लीकेबल हो जाता है, पीएफ बिकम्स एप्लीकेबल ऑन 20 एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय का डेफिनेशन रिमेन्स द सेम लाइक इन ईएसआईसी. डायरेक्टर्स आर आल्सो हेड काउंटेड. सो जैसे ही 20 एम्प्लॉइज हो गए, रजिस्ट्रेशन बिकम्स मैंडेटरी. Directors are also included in the head count of 20. Even excluded employees. बहुत जगह अब ये एक कंफ्यूजन है कि 15,000 के ऊपर अगर कुछ लोग हैं, मेरे यहाँ 25 लोग हैं लेकिन 10 लोग 15,000 के ऊपर है, पीएफ लागू होता है सिर्फ 15 लोगों के ऊपर. ऐसा नहीं है. अगर वो 15 लोगों पे भी लागू हो रहा है लेकिन टोटल हेड काउंट आपके 20 के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज ऑल्सो इंक्लूडेड. अगेन यहाँ पे मान लीजिए किसी की कोई शॉप है या कोई छोटा एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट है, वहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉइज 15 ही हैं, बट देन देर इज हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं. दीज आर इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज. ये भी हेड काउंट में काउंट होता है फॉर बिकमिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएफ. So direct, indirect, be it contractor, be it apna, be it security guard, be it housekeeping, everything is included in the numbers for registration of PF. Now, 20 पे compulsory है. In some cases, if someone wants to take a registration, अगर 20 नहीं भी हुआ है, voluntary registration is applicable. ये voluntary registration लेना कोई चाहे तो ले सकता है. Once registered, always registered. Now, बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि मेरे 25 एम्प्लॉय हो गए थे, नाउ अब वो गिर के वापस 12 एम्प्लॉय हो गए. उस केस में रजिस्ट्रेशन का कैंसिल नहीं होता है. रादर अगर किसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसमें 0 एम्प्लॉयज हैं तो भी रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं होता है पीएफ का. मेंटेनेंस चालान आपको जमा करता रहना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन इज ओनली सरेंडर इन केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंड अप. Reduction in number of employee does not mean you can surrender the registration. Only HR is not a part of PF contribution. Wage ceiling 15,000 है current. So people, new joinees, yeah, we will discuss further. New joinees coming to the company can opt out of it if their salary is above 15,000. Due date again is within 15th of the next month. Interest and damages per day, same like ESIC. Basic PF not calculated on the entire salary. जैसे अपने ESI full salary पे होता है, gross salary पे, PF is not calculated on the gross salary. HRA इसमें बात जाता है. Allowances such as HRA is not part of PF wages. Overtime is not a part. जैसे ESI पे अपने बात किए थे कि ESI पे अपने को ओवरटाइम पे ESI अपने पेमेंट करते हैं, बट इन केस ऑफ पीएफ ओवरटाइम पे पीएफ नहीं लगता है. इंसेंटिव वेरिएबल इन नेचर. यहाँ पे वो 60 डेज या फ्रीक्वेंसी वाला इशू नहीं है. इफ देयर इज इंसेंटिव एंड इफ इट इज जेन्युइनली ऑन अ वेरिएबल बेसिस, पीएफ इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन दैट. बोनस के ऊपर पीएफ एप्लीकेबल नहीं होता है. नाउ केवाईसी में हियर more than ESIC, Aadhaar is very important for PF. बिना आधार, वेरीफाइड आधार के पीएफ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा किसी एम्प्लॉय का, एंड देन यू कम इनटू द लूप ऑफ सप्लीमेंट्री एंड डिसअलाउंस बिकॉज ऑफ द डिले. पैन कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन हियर पैन कार्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब क्लेम उठाते हैं तो एक टीडीएस कटता है. सो इफ टीडीएस इज डिडक्टेड विदाउट अ पैन कार्ड, इट गोज टू नो वन. इफ टीडीएस इज डिडक्टेड विद अ पैन कार्ड, इट गोज टू द बेनिफिशियरी. Account number, because nothing comes by physical form anymore, everything comes to the bank account, so bank account is important. Phone number in particular for PF is very important because every application is done directly by the employees do not do the application. Nominee is again very important, and nominee's Aadhaar card is also very important for any kind of benefits that is there. Now these are the benefits. Pension है उसमें. On special occasions, जैसे अभी कोविड में हो रखा है, people can withdraw their amount from PF.
the interest on the provident fund in PF, that is tax exempted. In case you are filing any individual files और उनको PF से अगर जो returns मिल रहे हैं, that is tax free. EDLI is basically, ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि PF अपने जो जमा करते हैं उसमें एक पेंशन पार्ट है, उसमें एक अपना प्रोविडेंट फंड पार्ट है विच इज सेविंग्स एंड पेंशन, बट उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस पार्ट भी है. 2.5 लाख से 6 लाख तक का एवरीवन हु इज अ मेंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड, 2.5 लाख से 6 लाख उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है ऑफ ईच एम्प्लॉय. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सिचुएशंस लाइक दिस व्हेन इंश्योरेंस चाहिए फॉर रीओपनिंग आफ्टर लॉकडाउन. सो ऑडिट पॉइंट्स में अगेन प्रॉपर कैलकुलेशन, जहां पे अपने HRA बाद देकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अननेसेसरी अलाउंसेस को अलाउ नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट ऑन टाइम, डिले ऑफ ये आप अक्रूवल बेसिस पे बुक करते हैं एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड डैमेजेस. अरियर एंड सप्लीमेंट्री, जैसे मैंने ESIC पे समझाया, यहाँ पे भी वही है. अरियर डिसअलाउ नहीं होता है. कंट्रीब्यूशन ऑन अरियर, मानिए किसी की सैलरी 8,000 थी, अब हमने 10,000 कर दिया, तो 2,000 के ऊपर तो हम डिफरेंस ऑफ पेमेंट हुआ है तो डिफरेंस ऑफ PF भी अपने जमा करते हैं. उस 2,000 को डिसअलाउ नहीं होता है ऑन अरियर. बट सप्लीमेंट्री अगर है, किसी का अपने डॉक्यूमेंट नहीं आया, जनवरी फरवरी मार्च का अपने जाकर अप्रैल में जमा कर रहे हैं, तो वो एक पोर्शन अपना डिसअलाउ होगा. सो दैट इज सप्लीमेंट्री. जो डिले जमा हो रहा है दैट इज सप्लीमेंट्री. अरियर इज नॉट सप्लीमेंट्री. Disallow only the employer's share if delayed. ECR and acknowledgement, I'll share you the documents. एक ये नया डेवलपमेंट आया था कि now any new company that you are forming in MCA, PF नंबर आपको वहीं एलोकेट हो जाता है. So there is a confusion regarding this कि वो वहां से नंबर एलोकेट हो गया तो वो क्या लागू हो गया है? No, वो लागू नहीं होता है. जब आप वो 20 लोगों का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, तब से वो आपके ऊपर एक्ट लागू होता है. Registration number is not equal to applicability of the act. वो थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस होता है तब आपके वो एक्ट एप्लीकेबल हुआ है. नाउ अभी नया जो स्कीम आया है सब्सिडी का, उसके पहले का जो सब्सिडी था, सो दिस इज व्हाट PMRPY का अमाउंट यहाँ आता है आपका इन द चालान एंड एक्नॉलेजमेंट. ये आपके अदर इनकम में बुक होता है. ये आपका ECR है. यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्रॉस सैलरी अपने जो पूरी सैलरी है वो है, बट PF सैलरी अलग है. ये HRA बाद देकर जो अमाउंट हुआ दैट इज PF सैलरी, बट यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर होती है. अगेन कब पेमेंट हुआ है यू कैन सी फ्रॉम दिस. वेज मंथ कौन सा था और ये रियलाइजेशन डेट कब का है PF में. अकॉर्डिंगली वो डिले है कि ऑन टाइम है, यू कैन असर्टेन फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स. मिनिमम वेजेस एक्ट, ये दो तरह के मिनिमम, दो अथॉरिटीज डिक्लेयर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडीज है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, बट अगर कोई कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं देन दे नीड टू फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस है जो डिक्लेयर होती है. एप्लीकेबल ऑन ऑल कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जैसे अपने PF और ESI में बात की है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 10 and 20 जब होता है तब, वैसा मिनिमम वेजेस में नहीं है. एंड इसके भी स्लैब वाइज है. बहुत लोग बिल्कुल सबसे लोअर स्लैब को ले लेते हैं एज मिनिमम वेजेस, बट मान लीजिए अकाउंटेंट इज नॉट अनस्किल्ड, तो वो स्लैब वाइज फॉलो करना जरूरी है. एंड द रिटर्न इज फाइल्ड इन फॉर्म 3. लेबर वेलफेयर फंड, ये एक अलग कंप्लायंसेस है फॉर स्पेसिफिकली फॉर वेस्ट बंगाल आई एम सेइंग. सो 10 और मोर एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता है. कंट्रीब्यूशन गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट. आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मैं थोड़ा आई एम रशिंग इट. ये बहुत छोटा अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है. एम्प्लॉय से 3 रुपए कटते हैं हर 6 महीने में, एम्प्लॉयर से 15 रुपए कटता है. सो हर 6 महीने में पर एम्प्लॉय 18 रुपए का कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है इन लेबर वेलफेयर फंड. नॉट फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, दिस फॉलोज द कैलेंडर ईयर ऑफ हाफ ईयर, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर. This again are the forms that are need to be filed. Again building cess जो है, this is again state government के related है. West Bengal में 2% and 1% is to be filed, whatever is the stipulated rate. Accordingly वो आपको जमा करना पड़ता है पर एम्प्लॉय के हिसाब से जो आप
रिटर्न जमा करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर जमा होता है. दिस द फॉर्म 25 इज टू बी फाइल्ड फॉर लेबर सेस. ये एक आपको ग्रेचुइटी कम्स अगेन फॉर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So gratuity act is applicable to every company with 10. So for better understanding we can say जिस कंपनी में ESI applicable है उस कंपनी में gratuity भी applicable है. Once applicable always applicable, ये फॉर्मूला इसमें भी चलता है. Wages here means only the basic wages with DA. यहाँ आपके मोबाइल अलाउंसेस हैं, हाउस रेट अलाउंसेस हैं, ओवर टाइम एंड अदर अलाउंसेस हैं, ये पार्ट ऑफ ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में नहीं आता. ओनली बेसिक इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रेचुइटी वेजेस एंड इट इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जिट. 5 years of continued service and the 5th year is considered to be 240 days or 190 days depending on two different criterias. Maximum gratuity that can be paid out under gratuity act is 20 lakhs. Say for a CFO or an executive director, ऐसा नहीं है कि 50 लाख सैलरी है तो उसको 50 लाख gratuity पे कर सकते हैं. There is a maximum ceiling to it. Provision to be made in balance sheet, either वो अपने लाइफ इंश्योरेंस के इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ले रखे हो या अप्रोप्रिएट वो अपना एलोकेशन अगर करके प्रोविजंस करके रखे हैं फॉर ग्रेचुइटी लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, दैट इज गुड. एंड दिस इज द कैलकुलेशन फॉर दैट. अपने जो बोलते हैं 15 दिन का, उसमें 15 दिन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बाय 26. आज कोई महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो कहीं 28, कहीं 30. दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको 26 से डिवाइड कीजिए और 15 से मल्टीप्लाई कीजिए. दैट इज योर and into the number of years of service, that is the gratuity that is to be calculated. Now some of the best practices I think I'll skip. ये establishments के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं. Verify Aadhaar, file ECR on time. Now this is the most important thing that I think most of you were waiting for. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Any company which is having less than 100 employees, और वो 100 employees जो भी number of employees हैं उसमें से आपके 90% of the employees have to be below the salary of 15,000. Now यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लोग PF में registered हैं वो उसके 90%, आपके total employees के 90% is what is calculated here. क्योंकि हम जब PF का चालान भरते हैं तो जो PF से बाहर है वो नंबर भी हमको डिक्लेयर करना पड़ता है. So government has the number और उसके हिसाब से जो अपने आप अप्लाई एलिजिबल है वो पीएफ के पोर्टल में दे आर ऑटोमेटिकली टेकिंग इट. सो दिस इज अ सब्सिडी PMGKY. ये जिनको एप्लीकेबल है, आई थिंक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एप्लीकेबल है. सैलरी पेमेंट करना, दिस इज अगेन अ बर्निंग क्वेश्चन इन द मार्केट टुडे कि सैलरी पेमेंट करें नहीं करें, गवर्नमेंट की क्या सर्कुलर है. सो माय एडवाइस वुड बी टू प्रोवाइड फॉर योर एम्प्लॉइज. जो आप सैलरी पे करना चाहते हो वो आप पैसा ट्रांसफर कीजिए. एंड सुप्रीम कोर्ट में देयर आर सर्टेन हियरिंग्स पेंडिंग. सो बेस्ड ऑन दोज हियरिंग्स वेट एंड वॉच. कंप्लायंस क्या करना है, कैसे बुक करना है, नहीं करना है. सो अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है. देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. जो पे कर सकते हैं वो पे करें, बट अभी उसको किसी भी हेड में बुक ना करें जब तक सुप्रीम कोर्ट का आता नहीं है अपना कोई क्लैरिटी. ESIC का ड्यू डेट वाज एक्सटेंडेड फॉर February एंड मार्च टिल 15th of May. अप्रैल का भी अभी 15th of May ही है, अभी तक एक्सटेंशन आया नहीं है. होपफुली वी गेट सम एक्सटेंशन ऑन दिस. ऑन एक्सटेंडेड डेट्स, अगर ऑफिशियली डिपार्टमेंट ने कोई डेट एक्सटेंड किया है, सो दैट इज द ऑफिशियल ड्यू डेट. अपने अलाउ डिसअलाउ जो करते हैं वो ऑफिशियल ड्यू डेट के बाद अगर होता है तब वो उसको डिसअलाउ करते हैं. So as of now, for the wage month March, the official due date is 15th of May for both PF and ESI. Now hopefully we'll get an extension for the wage month May as well. EPFO due date is also extended. Employees can take advance from whatever money they have from the EPFO up to 75% of their provident fund, not the pension fund. अनदर थिंग, जब रीओपनिंग में अपने जाते हैं तो एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन SOP में आया हुआ है कि ऑल द एम्प्लॉइज हैव टू बी कवर्ड. यहाँ पे लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर. पीपल
or the employees who have the coverage of ESIC need not take any new general insurance का cover. बट मान लीजिए आपके कंपनी में 20 एम्प्लॉइज हैं जिसमें ESI 17 लोगों का है, बाकी 3 लोगों का नहीं है, वो 21,000 के ऊपर है, तो वो 3 लोगों का आपको अलग से कवरेज कोविड कवर लेना होगा. बट ये 17 लोग जो ESIC में है उनका कोई अलग से आपको कोविड कवर नहीं लेना होगा फॉर रीओपनिंग. चाइल्ड लेबर बेसिकली आपको ये असर्टेन करना है फॉर ऑल 12 मंथ्स के सैलरी शीट में जो भी ज्वाइनीज हैं कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए. If you are uncertain, you can qualify that they are not in the child labor. So that's basically the presentation. Now we should open the floor for question answer. I think Sushilji, if you can put up one question at a time, I can explain. With the PF system, if all the employees of the company retires or leave, and they took their dues, PF dues from the company, and the PF department, even then we cannot close that account. No. See, आपका PF is a registration. PF account employee का होता है. Yeah. Employer का कोई PF account नहीं होता है, आपका registration है. So registration आपका रहता है, उसमें एक 75 रुपीज का मेंटेनेंस चालान सिर्फ जमा होता है, वो आपको हर महीने जमा करना है. रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं होता है. That cannot be surrendered. So it is a simple mantra: once a member, always a member. Yeah. So there is a question from Ankit Aditya ji. The question है Pradeep ji से, with reference to recent circular of Provident Fund on COVID, one company has 20 people, 9 draws salary above 15,000, and have also registered company not to deduct Provident Fund on balance 11 employees. Provident Fund is deducted, 90% are within 15,000. In this scenario, can the company go for the scheme where government will give employee portion also for 3 months? मैं 1 मिनट आपको ऊपर देख लेता हूँ. क्वेश्चन चैट बॉक्स में था, रेफरेंस टू रिसेंट सर्कुलर, वंस अ कंपनी 20 एम्प्लॉइज 9 नहीं, आउट ऑफ से इसमें आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ, वन कंपनी हैज 20 पीपल, 9 ड्रॉ सैलरी अबव 15,000. सो अगर वो है तो आपका गरीब कल्याण योजना में वो कंपनी क्वालिफाई ही नहीं होती है. सो इन दैट केस अगर वो 20 एम्प्लॉय पीएफ में रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडेड हैं, तो 20 का आप कंपनी ही पे करेगी. एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से काटेंगे और जो स्टेटस स्टैंडर्ड, फिर उसमें कुछ अलग से नया कुछ नहीं है. और जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें वो जो एम्प्लॉय का शेयर है वो एम्प्लॉय को पास ऑन होगा, एम्प्लॉयर वाला शेयर एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिल रहा है. जैसे 12% है तो 12% एम्प्लॉय को पास ऑन हो गया, 12% कंपनी के फायदा हो गया जो क्वालिफाई करते हैं. और जो क्वालिफाई नहीं करते हैं उनके लिए इट इज स्टेटस को. अपने पास लोग जालान जी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर 8 numbers working under my premises for supplying goods to me after finishing is not counted with employees for calculating applicability. Contractor workers working under my premises, नहीं, ये अगर आपके प्रेमिसेस में है बट एक्सक्लूसिवली अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो ये आपके हेड काउंट में काउंट होगी. मान लीजिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके बिल्डर के हिसाब से आ रहा है या मिस्त्री के हिसाब से आ रहा है या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और दीज पीपल आर कमिंग, मान लीजिए कोई अगर गुड्स डिलीवर करने आया है तो वो आपके काउंट नहीं हुआ. बट अगर वो आप ही के यहाँ काम कर रहे हैं बट वो पेमेंट उसका कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो वो आप ही का एम्प्लॉय माना जाएगा इन द हेड काउंट. सो कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर के पास समूचे मिला के 8 एम्प्लॉय हैं तो उसके पीएफ ईएसआई लागू नहीं हो रहा, बट आपको अपने कोड में उनका पीएफ ईएसआई करना पड़ेगा अगर आपके टोटल काउंट्स बढ़ गए हैं तो. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदीप सेठा जी से, कैन एक्रूड लीव बी एडजस्टेड इन कोविड लॉकडाउन? Accrued leave, this is to be mutually decided between the employer and the employee. ये जब खुलता है तो एज अ कंसल्टेंट आई एम सजेस्टिंग माय क्लाइंट्स, करीब 100, 125, 150 क्लाइंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ और उनका रिटेनरशिप है मेरे पास. सो आई एडवाइज देम टू म्यूचुअली डिसाइड विद द एम्प्लॉइज और उनसे एक लीव एप्लीकेशन लिखवा लेने का. जो उनका पेड लीव है वो पेड लीव अप्लाई करवा के अगर वो एडजस्ट हो जाता है तो, क्योंकि अभी ये नहीं तो डबल मार पड़ रही है. 2 महीने 3 महीने वैसे बंद रहेंगे, फिर 8 महीने 7 महीने जो काम होंगे उसमें भी अगर 1 महीना का उनका एंटाइटल्ड लीव जो है वो अवेल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी गोज फॉर अ टॉस. सो दिस इज टू बी लीगली आप नहीं कर सकते,
बट म्यूचुअली अगर एम्प्लॉय के साथ आप नेगोशिएट कर लेते हो तो आप कर सकते हो। सर कोई अच्छा पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स? एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर तो मेरा ही आने वाला है, इफ यू कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, salary.books.com. I'll just change the screen, so I think you will be able to see my brand. So I have a software of my own which is designed by me, तो उसमें सारे compliances and काफी कुछ आप उसमें खुद ही कर सकते हो, यूजर बेस्ड है। सो इफ यू कैन वेट फॉर इट, अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप बेस्ड भी हैं, सरल हैं, और इस तरह के काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं ग्रेट मार्केट में। एचआर भी है ना आदित्य? ग्रेट हाँ? एचआर, ग्रेट एचआर। ग्रे एचआर में काफी लिमिटेशंस हैं। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर्स मैंने देखी हैं उसमें होता ही है कि कैलकुलेशन तो कर देते हैं कि किसको क्या पे करना है, बट लेबर लॉ में काफी सारे लेयर्स हैं। आज मान लीजिए इस हेड पे देना है, इस हेड पे नहीं देना है, स्ट्रक्चरिंग करना है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आई हैव नॉट फाउंड कॉम्पिटेंट टू हैंडल दोज वेरिएशंस। राइट। महेश जी का क्वेश्चन है, whether partners of LLP are counted for employees purpose? Partners of LLP are not counted for the employee purpose unless they are taking salary from the LLP. कई LLP में पार्टनर सैलरी ड्रॉ करते हैं एज अ कॉम्पनसेशन, वहां वो काउंट होंगे। अगर सैलरी ड्रॉ नहीं करते हैं तो एम्प्लॉय में काउंट नहीं होंगे। सर एक क्वेश्चन है, सुमित जी आप अपना क्वेश्चन चैट पे डालिए, बिकॉज अभी स्क्रीन करना थोड़ा सा टफ रहेगा। रजन्य का एक क्वेश्चन है, इज दिस मैंडेटरी टू प्रोवाइड मेडिक्लेम हु इज बियॉन्ड ESIC? नो, इन जनरल केसेस इट इज नॉट, लेकिन अभी आप रीओपनिंग आफ्टर कोविड जब करते हैं तो उसमें ऐसा आया है एसओपी में कि यू नीड अ मेडिक्लेम। सो एक कोविड स्पेसिफिक कवर भी आ रहा है, यू कैन टेक दैट, बट मैंडेटरी अपार्ट फ्रॉम ESIC, जो ESI के बाहर हो जाता है उसके लिए कोई मेडिक्लेम इज नॉट कंपलसरी। एंड कोई अगर मेडिक्लेम लेके भी रखा है तो लेट मी क्लेरिफाई, मान लीजिए बहुत जगह ये कंफ्यूजन है कि हमने मेडिक्लेम ले रखा है तो हमें ESIC नहीं चाहिए। दिस इज अ रॉन्ग नोशन। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ ESIC, और जो 21 के ऊपर है उसके लिए मेडिक्लेम इज नॉट मैंडेटरी। ये अजीत भैया का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम सैलरी पेएबल टू पियोन? दैट इज एज पर यू। अगर आप मिनिमम वेजेस वाला है, अनस्किल्ड वाला जो भी आपके स्टेट में है, आई थिंक करेंटली इन कैलकाटा इट इज 8,100 और समथिंग। सो एज पर लॉ वो है, बाकी चलने में आप जो चला लीजिए। विवेक पंडित जी का क्वेश्चन है, इफ एनी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड ESI इज पेड आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इज दिस एन अलाउड एक्सपेंडिचर और दिस? ये बहुत कंटेस्टेड एक इशू है। कैलकाटा जुरिस्डिक्शन में देर आर सर्टेन CAs, ये आप लोग CAs लोग ही से मैं सीखा हूँ कि इन कैलकाटा जुरिस्डिक्शन इट इज अलाउड, बैंगलोर जुरिस्डिक्शन डज नॉट अलाउ इट। सो विद इन द ड्यू डेट अगर आप पे करते हो तो अलाउड है, ड्यू डेट ऑफ द डिपार्टमेंट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं। बट कैलकाटा जुरिस्डिक्शन में ये माना जाता है, बट बैंगलोर इज नॉट अलाउइंग इट। मैं अपने कंपनी में खुद भुगतभोगी हूँ इसका। Polomi Banerjee का क्वेश्चन है, for bonus each month loss of pay to be considered or flat 8.33% is to be considered? मैं नहीं समझा, हाँ है, एक बार रिपीट करें। For bonus purposes each month loss of pay to be considered or flat 8.33%, मतलब अगर पे में जो लॉस है उसको नहीं, ऑफ अर्न्ड वेजेस है, ऑफ योर अर्न्ड ग्रॉस का 8.33, एंड बोनस एक्ट डज नॉट से कि आप 8.33 तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। इन बोनस एक्ट यू कैन पे मैक्सिमम बोनस ऑफ 20%। ओके, सो या तो 8.33, सो यू हैव टू डिक्लेयर द रेट ऑफ बोनस एवरी ईयर। उस पे जो अमाउंट आता है उसमें अगेन द वेज सीलिंग फॉर बोनस इज 7,000। सो ये ऑफलाइन मतलब किसी को अगर समझना हो तो बाद में समझ सकते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड इसका कैलकुलेशन है। प्योरली बाय द बुक्स अगर आप जाना चाहते हैं बाय लॉ, तो एक सर्टेन अमाउंट ही आप बोनस पे बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर का अमाउंट आप एक्स ग्रेशिया पे बुक करते हो। सर, is casual worker liable for ESI and EPF? Yes, there is no definition in ESI, PF or any other law as casual or permanent. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। Anyone working for you even for a day is an employee. वहां सिर्फ एम्प्लॉय का डेफिनेशन है, कोई कैजुअल और परमानेंट का कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है।
सर अगर जॉब वर्क बेसिस में करे, if work is done on a job work basis, then also EPF registration mandatory. If it is job work, it is not mandatory, but job work में आपको GST bill अगर आप ले रहे हैं, so it is a commercial transaction, it is not a labor transaction. But job work में अगर आपके premises में हो रहा है, जैसे गारमेंट एंड लेदर इंडस्ट्री और कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं जहाँ काम जॉब वर्क में हो रहा है, बट आप ही के मशीन पे, आप ही के फैक्ट्री में हो रहा है, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज जॉब वर्क. वहां आपको PF/ESI का कंप्लायंस पूरा करना जरूरी है. अब फैब्रिकेशन वगैरह जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है, जॉब वर्क के लिए बाहर गया, वहां से मशीनिंग होके वापस आ गया है, तो उस जगह एक इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बैलेंस शीट में आप अपने PL में जॉब वर्क बोल के बुक कीजिए, उसको लेबर चार्जेस बोल के बुक मत कीजिए. अगर लेबर चार्जेस बुक करते हैं तो वो फिर लेबर चार्जेस में PF/ESI में आ जाता है. ये एक बहुत गलती करते हैं जो उसको क्लासिफाई जब अपने करते हैं तो जॉब वर्क को लेबर चार्जेस बुक कर देते हैं. दैट इज अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन. सर हमारे एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर TK संगाई जी का क्वेश्चन है, whether probation period will be counted for continuous services under gratuity law. Yes. Probation period. Yes, there is nothing called provisional period in gratuity. जैसे मैंने बोला, even one day of work is one day of employment. लेबर लॉ में कहीं पे भी प्रोविजनल परमानेंट ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है. The only thing is अगर वो अप्रेंटिस एक्ट में एज एन अप्रेंटिस जो काम किया, दैट पीरियड इज नॉट काउंटेड. एंड 5 years हैज टू बी कंटिन्यूअस सर्विस. मान लीजिए कोई 2 साल काम किया, फिर आपके यहाँ से एग्जिट लेके रिजाइन करके चला गया, साल भर बाद वापस आ गया, सो इट इज अ न्यू एम्प्लॉयमेंट आफ्टर दैट. So 5 years have to be continuous service. Saurabh Shah का क्वेश्चन है, is provident for ESI gratuity mandatory for LLP? It is mandatory for any establishment. वो ट्रस्ट भी हो सकता है आपका, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, एनीथिंग, एनी एस्टैब्लिशमेंट. दैट इज द डेफिनेशन. सो LLP पार्टनरशिप से कोई फर्क नहीं है. एन एस्टैब्लिशमेंट इज एन एस्टैब्लिशमेंट. इवन चैरिटेबल एस्टैब्लिशमेंट्स आर एस्टैब्लिशमेंट्स. सर एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है सुमित मुखर्जी जी का, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको बताने की. We are a company working with 4 lakh plus associate under our role. In this, there is a segment of people working for exclusive project-oriented work in various states of the country. I do not have office in West Bengal, but my employees are deployed in West Bengal at different client locations. My head office and operational office are both in Bangalore. Now my question is, can I deposit professional tax of the employees working in West Bengal in Bangalore, where we already have offices and PT registration? This is purely a project-based work where we deploy associates for a period of 1 month to 12 months maximum. So basically, in that case, you can follow your Bangalore professional tax, because if your salaries have been released from Bangalore and if it is a temporary deployment, you need not deposit the professional tax in Bengal. You can deposit it in Karnataka. And this is again a very gray area because different companies, इसमें professional tax में कुछ ऐसा defined भी नहीं है. A lot of companies are following the office from where salaries are dispersed as the professional tax deposit का, और बहुत सारे offices अलग-अलग जगह registration लेकर भी रखे हैं. So it is a gray area, but in particularly in Mr. Sumit Mukherjee's case, he can deposit it in Karnataka, and he will be compliant. Aditya ji, how to deal with casual laborers? I think this is a repeated question. मेरे ख्याल से आपने आंसर कर दिया था. Sumit, we cannot allow video call because बहुत सारे questions and we have very limited time, so we are very sorry for that. हर्ष दुग्गर जी का क्वेश्चन है, same rule applicable to partnership form as LLP in context of headcount? I think yes, you have given the answer to this. Yeah. Pooja Das का question है, an individual has 14 employees who has shown under contract basis, but this year all under his payroll. 3 of them 17,000, 5 13,000, and remaining 9,000. What all is applicable as client is individual? So इनके पास 14 एम्प्लॉई है. हाँ, 14 एम्प्लॉई है, इंडिविजुअल है, बट द एक्टिविटी इज कमर्शियल, आई सपोज. हाँ. सो इन अ कमर्शियल एक्टिविटी इनके ऊपर ESIC एप्लीकेबल हो रहा है. 14 एम्प्लॉई है तो 20 के नीचे हैं, तो PF एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बट ESIC इनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है. Okay. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है. एनीवन एंगेजिंग इट. अब मान लीजिए इनका अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर रजिस्टर्ड है, देन ही कैन एस्केप इट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर खुद कंप्लाई कर रहा है. सो आइदर ऑफ द प्लेसेस, या तो कॉन्ट्रैक्टर की जगह कंप्लाई कीजिए या डायरेक्टली कंप्लाई कीजिए, कंप्लायंस बनता है. अच्छा, is form 11 sufficient to exclude someone from EPFO whose basic is higher than 15,000? Form 11 is a document you don't have to submit anywhere else, but Form
11 इज अ डॉक्यूमेंट जहां एम्प्लॉय आपको डिक्लेयर करता है कि मैं कभी भी इन द प्रीवियस पास्ट पीएफओ का मेंबर नहीं था. सो अगर कोई पीएफ का मेंबर नहीं था, वो डिक्लेयर करता है, ऑन दैट बेसिस आप उसको एक चॉइस लेते हैं कि आई एम ऑप्टिंग आउट ऑफ पीएफ. सो फॉर्म 11 जो भी आप एक्सक्लूड करते हैं उनका फॉर्म 11 जमा रखना आपके लिए जरूरी है, एंड दैट इज सफिशिएंट. Mahesh ji, the question is whether articles under CA firms are covered in the Minimum Wage Act. Yes, no, articles are not considered as employees, they are considered as apprentice or trainees. So उनके ऊपर employment act कोई भी labor law apply नहीं होता. Tani ji का question है, in case of PF, please clarify, payment has to be done by 15th of the following month of the salary or wage, or it is 15th of the following month in which salary or wage is paid. जिस मंथ का आपने सैलरी दिया है, मान लीजिए अभी अपने मई में सैलरी कर रहे हैं अप्रैल का, सो फॉर द वेज मंथ अप्रैल 15th of May. Very good. आलोक महोता जी का क्वेश्चन है, ग्रॉस सैलरी एलिजिबल हेड इज 12,000, 15 days absent. Please explain PF, ESI, PTAX on which not to be calculated, on 100% or 50%? 12,000 is the salary and 15 days absent. Right. हाँ, तो जैसे मैंने इन माय प्रेजेंटेशन आई सेड, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है. पीएफ के अंदर रहेगा या नहीं, ईएसआई के अंदर रहेगा नहीं, ये उनके रेट ऑफ वेजेस में होता है, बट जमा अपने को हमेशा अर्नड वेजेस पे करना है. मान लीजिए अब इन केस में 12,000 इनका सैलरी है, तो 15 दिन काम किया, कमाया उस बंदे ने 6,000. सो पीएफ एंड ईएसआई आपके 6,000 पे जमा होगा. लेकिन यही मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 22,000 है, तो 22,000 के रेट पे ये डिसाइड हो गया कि वो ईएसआई से बाहर है, बट अगर वो 15 दिन काम किया तो उसने कमाया सिर्फ 11,000, बट वो स्टिल ही विल बी आउट ऑफ ईएसआईसी. लाहौटी जी का क्वेश्चन है, इज देयर अ डिफरेंस इन डेट ऑफ बर्थ इन पीएफ एंड आधार कार्ड, हाउ टू अपडेट अवेल सब्सिडी ऑफ पीएमजीकेवाई? मतलब आधार और पीएफ में डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है. ये यू आर ऑलरेडी टू लेट फॉर पीएमजीकेवाई, बट ये आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म साइन होकर फाइल होता है. Employee has to file it, employer has to approve it with DSC, and then the field officer have to approve it. तो ये एक लंबा प्रोसेस रहता है. जनरल इन नॉर्मल टाइम्स में भी ये 15 दिन से 1 महीना लग जाता है. PMGKY is only for 3 months, so I think for those employees आपको वो एरर कोड आ रहा होगा 00017 something करके. So you have to deal with it, you can't do it. You're already too late in. So आगे के कोई सब्सिडीज आते हैं उसके लिए अपडेट कर लीजिए. आदित्य जी, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या 10 मिनट अपने एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, आई कैन एक्सटेंड, नॉट अ प्रॉब्लम. थैंक यू. तो अपने 10 मिनट में जितना और क्वेश्चन ले पाएंगे ले लेंगे. आलोक कुमार जलान जी का क्वेश्चन है, इवन कलकत्ता इट इज डिसअलाउड इन मैनी केसेस इफ नॉट पेड विद इन टाइम. आई थिंक दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. अजीत जी का फिर से क्वेश्चन है, इज सीए फॉर्म ट्रेनी अदर देन आर्टिकल्स कंसीडर्ड फॉर हेड कॉन्ट्रैक्ट? आई थिंक यस. अदर ट्रेनी जो है वो बेसिकली आपके एम्प्लॉइज हो गए, क्योंकि वो एजुकेशनल स्लॉट में नहीं आ रहे हैं आपके ऑफिशियली. महेश थोड़ा जल्दी जल्दी अपने कर लेते तो मैक्सिमम लोग को कवर कर पाएंगे. व्हेन द बेसिक सैलरी कैन रिड्यूस फॉर फ्यू मंथ. एज पर पीएफ एंड ईएसआई एक्ट में जो है वो आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, बट अगर आप पीएफ और ईएसआई में रजिस्टर्ड मेंबर एस्टेब्लिशमेंट हैं तो देयर इज अ बाइंडिंग कि आप सैलरी रिड्यूस नहीं कर सकते, बेसिक सैलरी रिड्यूस नहीं कर सकते, एंड ईएसआई के केस में ग्रॉस सैलरी रिड्यूस नहीं कर सकते. राठी जी का क्वेश्चन है, इफ अ शॉप एम्प्लॉयज 2 एम्प्लॉयज वेदर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज कंपल्सरी पोस्ट कोविड? हेल्थ इंश्योरेंस ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम का गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी आपके रहते हैं वो है. देयर इज नो लेबर लॉ का कोई गाइडलाइंस नहीं है. सो आपके एरिया में अगर वो बोलते हैं कि इफ इट इज मैंडेटरी देन इट इज मैंडेटरी. इट हैज नथिंग टू डू विथ लेबर लॉ, इट इज बेसिकली टू डू विथ पेंडेमिक एक्ट के अंडर में जो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आप कर रहे हैं वो है. विवेक पंडित जी का क्वेश्चन है, प्रोफेशनल टैक्स फॉर वेस्ट बंगाल में किस पे लगता है? क्या जो ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग पीएफ एंड एसएसआई ईएसआई उस पे लगता है, या सिर्फ नॉर्मल सैलरी एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स है? नहीं, इस पे बेसिक पे नहीं लगता, ये ग्रॉस अर्नड सैलरी पे लगता है. मान लीजिए किसी मंथ किसी एम्प्लॉय का 11,000 सैलरी है, तो वो 130 रुपये समथिंग जो आता है वो दिया आपने. अगले महीने अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है और उसने सिर्फ 9,000 कमाया,
तो वो एक्सक्लूडेड वाले में आ जाता है, एग्जम्प्टेड, कि 10,000 के नीचे द स्लैब इज 0. सो एक्चुअल अर्नड ग्रॉस सैलरी के ऊपर आपका ई टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल होता है, अर्नड सैलरी पे, नॉट ऑन दी फिक्स सैलरी. सर चंदन जी का क्वेश्चन है, अगर आपने ये बता दिया तो हम लोग ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे सबको, बट अगर आपको इसका आंसर देना है, प्लीज गिव क्लियर व्यू ऑन रिलैक्सेशन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन ईपीएफ. क्लियर व्यू, रिलैक्सेशन तो अपने अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे ही आया है. पुराना जो स्कीम था अपना फॉर PMRPY, रोजगार प्रोत्साहन, वो तो बंद हो चुका है. देयर आर एडवोकेसीज गोइंग ऑन. तो अभी तो और कोई रिलैक्सेशन है नहीं, एक्सेप्ट फॉर वो जो आया था गरीब कल्याण के, आपके 100 एम्प्लॉयज के नीचे होने चाहिए, और जो एम्प्लॉयज हैं उसमें 90% 15,000 के नीचे होने चाहिए. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही थी. Apart from that, there is no other relaxation in the PF. I don't understand this question. Can you please share COVID-19 as you mentioned? Huh? Not clear with this question from Piyashi Banik. He or she is asking, can you please share COVID-19 as you mentioned? I think that's an incomplete question. So COVID-19 के तो और वैसा तो भी कुछ है नहीं. COVID-19 में कुछ अपने ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुए हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाली चीज है. एंड अनदर पॉइंट दैट आई शेयर्ड ऑन माय स्लाइड वाज कि अगर कोई ESI में कवर्ड है तो अलग से आपको कोई जनरल इंश्योरेंस नहीं लेना है. यू हैव टू टेक जनरल इंश्योरेंस ओनली फॉर द एम्प्लॉइज जो ESIC के बाहर है. अगर रजिस्टर्ड कंपनी सीज टू बिजनेस हो तो क्या ये इग्नोर होगा? सीज टू डू बिजनेस, और आप लोग CAs हैं, आप अच्छा समझते हैं. बिजनेस ऑपरेशंस बंद होना और लिक्विडेट या वाइंड अप होना एक फर्क है. सो लिक्विडेट या वाइंड अप होता है तब रजिस्ट्रेशन सरेंडर होता है. सीज टू ऑपरेशन में रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं होता. वेरी गुड. पूजा दास का क्वेश्चन है, माय क्लाइंट इज एन इंश्योरेंस एजेंट. व्हाट इफ ही हैज ओनली 9 एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ 14 एम्प्लॉयज? सो हिस्टोरिकली भी अगर 9 ही रहा है तो इनके ऊपर ना PF एप्लीकेबल होता है ना ESI एप्लीकेबल होता है. बट इतिहास में अगर कभी 9 के ऊपर रहा है, 10 हुआ है तो ESI एप्लीकेबल हो गया, और 20 अगर था तो वो PF एप्लीकेबल हो गया है. अच्छा आदित्य, कैन यू are you going to PPT to us so that we can email it to all the restaurant? Yes, I will share my I have converted this PPT into a PDF, so I'll share the PDF to you. Thank you. Piyashi, I think on sabbatical but works for more than 5 years. Will he be eligible for bonus? Bonus or gratuity? I think the question was on gratuity. 5 years वाला तो gratuity पे होता है. So if someone is on sabbatical and after that he or she comes back, तो continued service ही माना जाएगा. कोई आपके यहाँ से रिजाइन कर देता है या टर्मिनेट होता है, दैट इज ब्रेक सर्विस. कोई अगर लॉन्ग लीव पे गया है या सबैटिकल पे गया है या सिक लीव पे है, सो दैट इज नॉट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस. मनोज मोहता जी का क्वेश्चन है, फॉरेन नेशनल्स हैव बीन टेकन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय एन इंडियन एंटिटी इन इंडिया एंड एमोल्यूमेंट्स आर बीइंग पेड एज प्रोफेशनल कमिटमेंट. इज देयर एनी ऑब्लिगेशन फॉर डिपॉजिटिंग PF? इफ यस, व्हाट इज? इफ इट इज बीन पेड एज प्रोफेशनल्स, आप अपना जो स्टैंडर्ड TDS वगैरह है वो काट कर आप उनका प्रोफेशनल पेमेंट कीजिए अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस. देन देयर इज नो PF and ESI, but you have to have a bill. If you are engaging someone as a professional, you should have a bill and you have to make payments after deducting TDS on certain sections. So in that case, as professional services, no PF and ESI is required. But if you are hiring them as employees, आपके उनका PF and ESI का compliance is mandatory. Even in case of foreign nationals. COVID SOP पे आपको कुछ बोलना है? COVID SOP पे I have just said 2 points जो था कि अगर आप रीओपन जब कर रहे हैं, सो बाद बाकी के जो मेजर्स हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू लेबर लॉज जो आपको कंप्लाई करना है, एक्सेप्ट फॉर उनका मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए. सो जो ESI में उनके कुछ नहीं करने की जरूरत है. जो ESI में नहीं है उनका आपको या तो कोविड कवर लीजिए या कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर लीजिए. And how do you explain contribution period, that is April to September? Okay, contribution period is basically ये सिर्फ ESIC में है, PF में नहीं है. April to September is one period, October to March is another period. अब मान लीजिए बहुत बार अपने किसी का सैलरी बढ़ाते हैं मिड ऑफ द ईयर, से मई में या जून में बढ़ा दिए,
20,000 थी, अब वो 22,000 या 24,000 हो गया है। तो लोग गलती ये करते हैं कि वो वहीं से उसका कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन बंद होता है ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बीच में अगर कोई उस थ्रेशोल्ड 21,000 के ऊपर चला जाता है तो पूरे अमाउंट पे ईएसआई आपको जमा करते रहना है टिल द एंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड। Thank you, Aditya. There's a question. Can a company pay more than rupees 20 lakhs as gratuity to one of its retiring employees? You can pay more than 20 lakh as but not as gratuity। आप 20 लाख रुपए ग्रेचुइटी हेड में पेमेंट कीजिए और उसके ऊपर का जो अमाउंट है उसको एक्स ग्रेशिया या गोल्डन हैंडशेक के हेड पे आप बुक कीजिए, क्योंकि जो उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है ग्रेचुइटी पे अपने पर्सनल फाइल्स जब करते हैं तो उसका सीमित इज 20 lakhs ओनली। Okay. Rajanya का question है, what is the minimum percentage to be paid to an employee to avoid any kind of liability? Didn't get you, can you come back on? COVID के कारण what is the minimum percentage to be paid to an employee to avoid any kind of liability? अभी ये चीज में कुछ क्लैरिटी नहीं है बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलर सेज 100%, और हमारे अपने सर्कल्स में देयर आर डिस्कशंस, बट आई डोंट वांट टू मेक अ क्वालिफाइड रिमार्क ऑन दिस बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। सो एक इंटरप्रिटेशन है कि अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वी कैन पे एज ले ऑफ 50%, बट आई एम नॉट मेकिंग इट एज अ क्वालिफाइड रिमार्क। So circular abhi it is sub judice with Supreme Court. Let us wait. So isme wait and watch is the best policy. We are not taking PRC, so PRC have many questions. Mahesh ji का एक question है, whether allowances like special allowances can be reduced. मैं दो question और लूँगा, then we will request our deputy convener to wind up. Yes, special allowances can be reduced in terms of PF, but not in terms of ESIC. ESIC क्योंकि gross पे आपका applicable होता है, and I think the clause number is clause 12 of ESIC, which prohibits any reduction of salary. Ravi Sureka का एक question है sir, is PF and ESI compliance mandatory even number of employees reduced to 2 or 3 after closing all activities? अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया था तो आपके नंबर्स आज कितने हैं उससे मतलब नहीं है, वो कंप्लायंस आपका जारी रहेगा। लेकिन इतिहास में कभी भी अगर वो नंबर्स थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस नहीं किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं है। सर हमारे पास क्वेश्चन की बौछार है और हम इतने के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ विवेक कुमार पंडित जी का, जनरल इंश्योरेंस लेना क्या जरूरी है जिसकी सैलरी मोर देन 21,000? इन जनरल सिचुएशन लेना जरूरी नहीं है, देयर इज नो मैंडेटरी लॉ इन ESIC और एनी लेबर लॉ, बट कोविड पेंडेमिक का जो अभी SOP आया है उसमें मैंडेटरी है, बट इन जनरल सिचुएशंस मैंडेटरी नहीं है। थैंक यू सो मच आदित्य जी, वी रियली वांट टू से सॉरी फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट बिकॉज टाइम हम लोग को मेंटेन करना, वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स फ्रॉम द स्पीकर। आई थिंक हम लोग के करीब आधे घंटे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। Thank you so much, Aditya, for being with us. I'll request our president, R.K. Vyas ji, to please give his closing remarks, followed by our deputy convener, Gopal Khaitan, to give his vote of thanks. Over to you, Vyas ji. Thank you, everyone. I hope everyone stays safe. And for any Yes, queries, Aditya I'm ji, always once available. Yeah. Aditya ji, once again, our president will give the closing remarks. Then I will give you vote of thanks. Okay. Then we will close. We had a very fruitful discussion, and I thank from the core of the heart to Mr. Chokhani, who has deliberately, extensively dealt various labor law compliances, which are very near and dear in our audit fraternity. And a lot of people across the country has now joined in the Zoom webinar. And these thanks goes to all our delegates also. And this type of contemporary topics brings all the stakeholders nearer on these webinar platforms. So I really thank on behalf of the BBD BAG, the learned speakers who has shared on PPT, and now he has told that he will share the PDF materials to be shared to all delegates. Once again, thank you. Now to Deputy Convener, Gopal. Yes, sir. Yeah. I, Gopal Khaitan, on behalf of BBD BAG CA Study Circle and all our participants, thanks to Mr. Aditya Chokhani to enlighten us on such a great topic and the great sessions. We are now able to make the audit on these points. Thank you, Aditya ji. You enlightened us on the many points
of the PF and ECI. And I like to thanks to all our participants today. Thank you so much, Aditya ji. Yes, Thank you, Aditya. everyone. Thank you. Thank you, everyone. For any questions, anytime, you can see my number. ये किधर गया? Yeah. Either. We are seeing in the background. Yeah. So you can note down that number, and I'll also share my number on the PPT that I'll be sharing. So Yes, please Aditya. feel free will to request call me participants. anytime. Aditya, you can put your number in the chat box also if you want. Yeah, and you can always get in touch with me. That is not a problem. I'm putting my number on the chat, the WhatsApp number, and I hope you will give me a WhatsApp because इतने सारे calls And लेना, it's better to it's better to put your क्योंकि email ID. बहुत सारे You're doing calls much शायद better, नहीं ले Aditya. पाऊंगा मैं. Not a problem. I'm always there, and it costs you nothing to bounce back a question to me. So you can always take a question to me and stay compliant, stay safe. That is my only message for this lockdown period and the days to come.